जय श्री सविता। Ji and the dignitaries along with our beloved principal sir. And prosperity. So to light up the lamp, I would like to invite Dignity and Guruji, so please. Are esteemed to occupy their seats on the dais. Please, ma'am. मन में उमंग भर देती है, मन में उमंग भर देती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पधारे हुए अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए पूज्य हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए, जिससे हमारे सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। I, Roshni Malakorna, on behalf of Sri Shankara Vidyalaya, would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Srimati Rajni Rajak ji. We are indeed grateful for your gracious presence, ma'am. Shri V. Ramchandran ji, President, Sri Shankara Education Society. It's a privilege to welcome our respected Principal Sir, Shri Vipin Deshmukh ji, Shri Harish Chandra Chatwani ji, Vice Principal, Madam Shobha and Madam Usha, Headmistress, whose guidance is really valuable for the school. I would also like to welcome our dear teachers, parents and all my lovely students to make this event a remarkable one. To proceed further, I would like to hand over the mic to Madam Shikha. Wonderful evening to everyone witnessing this auspicious day of our school. I, Shikha Verma, feel extremely privileged to introduce our esteemed chief guest, Srimati Rajni Rajak ji. Madam is a renowned international folk artist working in Bhilai Steel Plant, who is a cultural and social icon. आज वो लोक गायिका श्रीमती रजनी रजक जी हैं। रजनी रजक हॉल में हुआ। वर्ष 1980 में ही उन्होंने मंच की साधना शुरू की एवं लोकगीत, लोक गाथा, लेखन प्रलेखन में निपुण हो गईं। रजनी जी लंबे समय से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को साक्षर बनाने निरंतर कार्यरत हैं। वे महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सक्रिय हैं। मैडम ने अब तक 30,000 लोक कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण, 25,000 स्कूली बच्चों को
12,000 महिलाओं को अर्थात लगभग 60,000 जनमानस को लोक कलाकार के रूप में गढ़ा है। मैडम आकाशवाणी दूरदर्शन की नियमित कलाकार हैं। इनके सांस्कृतिक योगदान के लिए 2018 में रजनी जी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा गौरवशाली नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद ही गर्व की बात है। मैडम, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू with us today. Thank you for your gracious presence. As we proceed further, I would like to say, flowers makes us smile and make the day bright. A frame full of flowers fills the heart with delight. Yes, I would like to call upon Adish Kole to welcome our Honorable Chief Guest, Srimati Rajni Rajak ji, with a bouquet. I call upon Shanvi Sake. I call upon Patient Society with a bouquet. Please, sir. Jai Shankar. Good evening, one and all. Kindly accept my heartiest welcome on the occasion of the 34th Annual Day Function 2022 of the Pre-Primary School, that is classes Nursery to KG2 of Sri Shankara Vidyalaya Sector 10 Belai. Highly esteemed Chief Guest of this function, Honorable Srimati Rajni Rajak ji, President Awardee and a folk artist, President Awardee for the year 2018, uniquely distinguished personality of the state and region, winner of the Nari Shakti Samman. She is working as Development Officer of CSR, Belai Steel Plant, Belai. Respected Shri V. Ramchandran ji, President SSCS Belai. Honorable members of the Managing Committee, members Shri Chandrasekhar ji, other distinguished members of SMC, members of press, PTA, distinguished guests, parents, teachers, and my dear students. On this day, I am glad to inform you, the school has completed 35 years of committed service to society on 9 July 2022. A brief history of the school. The school was founded in 1987 by His Holiness Jagat Guru Shankaracharya Sri Jain Saraswati ji, Swamingal of Kanchi Kamkoti Peetham. आज से लगभग 35 साल पहले की बात है ये. And the school made a very humble beginning with 4 rooms. जब शाला यहाँ प्रारंभ हुई थी, यहाँ सिर्फ 4 कमरे थे. 35 students split into 3 segments: KG1, KG2 and Class 1. 2 teachers, 1 support staff. At this place जहाँ हम बैठे हैं, which was popularly known as Lal Dibba Maidan by then. With the blessings of our Guruji and the vision and devotion of the management, hard work of staff members, dedication of students, and kind cooperation of parents, the school has carved out a niche for itself, not only in Belai, but in the region. Throughout our journey till date, we have always received and felt the blessings of Gurujis. Our Guruji, Shri Shri Chandrasekharan Saraswati Swami Ji, Shri Shri Jain Saraswati Swami Ji, Shri Shri Vijayan Saraswati Swami Ji. Hence, on this significant day too, we offer a humble prayer and gratitude to our Gurujis who have championed the cause of humanism through their philosophy of Advaitism. They are the leading light of our journey to success. As you all know, we are gathered here to celebrate 34th Annual Day function of the Pre-Primary School. This year onwards, इस बार से प्रबंधन ने फैसला लिया है कि जो बच्चे छोटे हैं नर्सरी KG1, KG2, उनका अलग फंक्शन होगा, 1 to 5 का अलग होगा, 6 to 12 का अलग होगा. इसलिए आप देख रहे हैं 3 बार एनुअल फंक्शन हो रहे हैं. The reason is
The reason is the requirement and need of the segment is totally different, and to enable us to nurture their talent in a better manner. With great pleasure, I present you the annual report of our school for the academic session 21-22. Sri Shankara Vidyalaya Bhilai is situated in Sector 10, which is the heart of township. Today the school has mammoth strength of about 4,000. 35 बच्चों से शुरू हुई हमारी यात्रा, अभी 4,000 बच्चों पर है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ, जो पेरेंट्स ने हमको कोऑपरेट किया है और जो अपना विश्वास दिखाया है शाला पे, शाला प्रबंधन पे, यहाँ के शिक्षकों पे, उसके लिए जोरदार ताली था। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। And I am also happy to announce, किसी भी संस्था में गर्ल्स बॉयज़ की संख्या इन जनरल खासकर स्कूलों में 60-40 होती है। 60 बच्चे लगभग बॉयज़ होते हैं और 40 बच्चे लड़कियां, पर हमारे यहाँ ये फिगर थोड़ा ज़्यादा है और आपको सुनकर अच्छा होगा लगेगा। 54% लड़के, 54% लड़के और 46% लड़कियाँ, मतलब 50 के करीब। ये बड़ा अच्छा सिम्टम है। They are imparted high quality value based education. All this is possible due to able and effective guidance of management, sheer dedication of about 150 teaching staff, 15 admin staff, 21 support staff, 28 transport staff, and about 35 housekeeping staff, and last but not the least, 8,000 strong parents. The school has posted its first batch of class 10th in 1996 and that of class 12th in 1998. This is going to be the 26th, यानी 25 बैच हमारे 12th के निकल चुके हैं। सिल्वर जुबली 12th के बैच उसकी हो चुकी है। इस बार 26वां बैच परीक्षा में अपीयर होने जा रहा है। Infrastructure of the school. The school is spread over 1,96,500 square meters. The school radiates a warm ambience congenial for stress-free learning, of which 65,146 square meters covers constructed area like classroom, labs, and 1,989 square meters is dedicated to playing area. The school is affiliated with CBSE Delhi. We have 63 classrooms, 4 staff rooms, 3 air-conditioned new computer lab developed, 1 lab each for physics, chemistry, bio, 1 composite lab, 1 maths lab, 1 language lab and social science lab. प्री स्कूल के बारे में, स्कूल के पहले वाली स्टेज जो है उसको प्री स्कूल कहते हैं। और NEP आपने सुना ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले जो एजुकेशन होता था वो होता था 6 से 16 साल का, अब वो 3 से 18 साल का हो गया। यानी नर्सरी में बच्चा 3 साल की उम्र कंप्लीट होने पे आएगा और 3 साल प्री स्कूल स्टेज, जिसको कहते हैं नर्सरी, KG1, KG2। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई M1, M2, कोई KG1, 2, 3, इस तरीके से। हमारे यहाँ प्री स्कूल में वी हैव गॉट 5 सेक्शंस ऑफ KG1, 5 सेक्शंस ऑफ नर्सरी, 6 ऑफ KG1 एंड 6 ऑफ KG2। ऐसे 17 सेक्शन है। उन पूरे 17 सेक्शन में मिलाकर 568 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एंड द स्कूल एंश्योर्स 100% पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑन द स्टेज। ये आपके जितने भी बच्चे हैं 568, सबको मौका दिया गया है कि वो स्टेज पर आकर परफॉर्म करें। एकेडमिक सेशन, द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स ऑन 1st April every year and continues till 31st March of the succeeding year. Admission is under process. एग्ज़ाम, टर्म एंड PTM। छोटे बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं उनका हम रिटर्न एग्ज़ाम नहीं लेते, ओरली कराते हैं। सारी एक्टिविटी तो होती है। उसके अलावा KG1, KG2 में कुछ लिखना शुरू होता है। KG2 तक बच्चा बहुत कुछ लिख पाता है उसकी उम्र के हिसाब से। देन द होल एकेडमिक सेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 terms, which is continuous and independent assessment. PTM is conducted after every assessment. Besides, some special PTMs are held as per the requirement. The schedule of PTM is published in school almanac well in advance for the effective communication of the parents. Teaching learning process, किस तरीके की पढ़ाई लिखाई होती है। The teaching learning process of the school is based on pedagogy and child psychology. A child-friendly and child-centered approach is adopted and teachers are trained accordingly. Initially, the child is acclimatized with the school routine to make the child feel about the school as a home away from home.
Besides, all attempts are being made to impart teaching learning as per the guidelines issued by CBSE in its new ECCE, Early Childhood Care and Education, जो अब से लागू हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसमें बड़ा स्ट्रेस है कि बच्चों को पहले क्या होता था, नर्सरी KG1 KG2 का कोई सिलेबस नहीं होता है, बड़ा दबाव होता था बच्चे पे, हम समझ नहीं पाते थे। अब मेरा कोई रिलेटिव रह रहा है दिल्ली में, वहाँ अगर 100 तक सिखाते हैं तो मैं आके यहाँ स्कूल में बोलता था, मैडम वहाँ तो 100 सिखा रहे, आप क्यों 20 सिखा रहे? उनको बहुत वेरिएशन होता था। अब ECC के आने से चाहे वो बच्चा दिल्ली में पढ़े, कानपुर में पढ़े, नागपुर में पढ़े या भिलाई में, द सिलेबस हैज़ बीन स्क्रूटिनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड, ताकि बच्चे पे अन्यथा दबाव ना पड़े। सारे टीचर्स को यहाँ ट्रेनिंग होती है कि दे शुड गो थ्रू विद सिलेबस एंड व्हाट इज बीइंग टॉट एंड हाउ इट शुड बी मेड इंटरेस्टिंग। कुछ पेरेंट्स आते हैं, अपना सवाल इस तरीके से रखते हैं जैसा मैंने अभी बताया कि वहाँ तो 100 पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? देयर इज ए स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू विच वी नीड टू गो। हमारे यहाँ स्कूल में जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना थोड़ा बहुत आप घर पे पढ़ा सकते हैं, पर स्कूल विल नॉट अमेंड इट्स सिलेबस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेरेंट्स, इट इज एज पर ECCE एंड CBSE। ज़्यादातर लोगों का हमसे कोऑपरेशन है, एक हाथ पेरेंट्स ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बात कर रहा था। बिसाइड्स ऑल अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्पार्ट टीचिंग लर्निंग एज पर गाइडलाइंस इश्यूड बाय CBSE इन इट्स न्यू ECCE एंड ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटिंग NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ग्रेट थ्रस्ट इज गिवन टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग। सारे बच्चे अलग हैं, ऑल योर चिल्ड्रन आर यूनिकली क्रिएटेड गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू। बच्चों को जिस तरीके से अभिभावक पालते हैं, हमने टीचर को ऐसा कहा है, आपसे भी आज कहने का मौका मिला है, ये बच्चों को आप ये समझ के पालिए कि आपके कोई बुजुर्ग या ईश्वर आपके यहाँ आए हैं और आपको सेवा करना है, इस भाव से पालिए। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, कभी भी। सबके पास यूनिक टैलेंट है। एक ज़माना था जब हम क्रिकेट खेलते थे, सिर्फ बड़े शहर के बच्चे क्रिकेट खेलते थे इंडिया टीम से। अभी देखो बड़े शहर सब साफ हो गए, कोई रांची से जा रहा है, कोई झारखंड से जा रहा है और बड़े शहरों पे हावी पड़ रहा है। तो टैलेंट ऐसा किसी जगह का मोहताज नहीं है, एक्सपोजर का है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मेरा एक और निवेदन है आपसे, बच्चे को आपको अभी कभी डांटना है, अकेले में डांटें और उसकी प्रशंसा सबके सामने कीजिए। यही हम टीचर को भी कहते हैं, ये बात को ख्याल रखिए। वो बच्चे आजकल के बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमको ऐसा लगता है ये बच्चा है, लेकिन बहुत मायने में हमसे ज़्यादा समझता है। मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जो एडमिशन टेस्ट होती है ना, चलो नर्सरी KG1 KG2 के भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे वो पेपर नहीं बना पाएंगे जो बच्चा बना रहा है, इतना बदलाव आ गया। तो आपके बच्चों को आप बहुत हौसला दीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, गलत होने पे समझाइए और टीचर से साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाइए। उनकी कंप्लेन उनके सामने मत कीजिए, बताइए कि सर मैडम ये ऐसा ऐसा बिहेव करता है, मैडम से आप कीजिए, चर्चा कीजिए। नहीं कोई सुझाव निकलने से हम भी आपसे बात करेंगे। हम एक नया प्रोग्राम शुरू किए, पेरेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम। जो बच्चे नए स्कूल में आते हैं उनके पेरेंट्स को हम बताते हैं कि हम क्या करा रहे हैं स्कूल में, आपको क्या ख्याल रखना है और इस पर कैसे तालमेल रहे। ये जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, ये ट्रॉइका या कहिए एक ऑटो रिक्शे की तरह है। सामने का चक्का आपका बच्चा है, पीछे का एक आप है और एक टीचर है। तो दिशा तो सामने वाला ही देगा, पीछे हमको उसकी दशा ऐसी बनानी है कि सही दिशा में जाए। Curriculum and academics. The pre-primary segment of a school strictly adheres to ECCE norms as per NCF, which aims at imparting education through experiential learning. Pedagogy, ऐसे नए नए शब्द आपको आते होंगे, किताबों में लिखा रहता है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। Pedagogy and develop among children critical thinking and problem solving skill. Student teacher ratio. The student teacher ratio is 28:1, which is considered ideal by all standards globally. मतलब हर बच्चों पे कितने टीचर होना चाहिए इसका एक स्टैंडर्ड है और ग्लोबल स्टैंडर्ड है 28:1, वो हमारा स्कूल फॉलो करता है। डेडिकेटेड एंड कमिटेड टीम ऑफ टीचर्स. We have a dedicated and committed team of teachers who are having long teaching experience. They are well qualified along with their professional qualifications.
टीचर्स ट्रेनिंग। देखिए जो पढ़ाई का क्षेत्र है इट इज़ एवर इवॉल्विंग। हम स्लेट पे लिखते थे, हमारे बच्चे कॉपी पेन से लिखते हैं, आने वाले बच्चे पैड पे लिखेंगे, टैब पे, डिजिटल पे, एवर इवॉल्विंग। कभी हम ऐसा कह जाते हैं बच्चों को, देखो तुम्हारे इतना बड़ा था तो मैं ऐसा करता था, बताइए, लेकिन उसकी गरिमा का ख्याल रखें। देन टीचिंग लर्निंग, टीचर्स आर बीइंग ट्रेन्ड रेगुलरली। 3 तरीके से ट्रेनिंग होती है, एक CBSE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ, वहाँ ऑनलाइन टीचिंग होती है, कभी कभी ऑफलाइन भी होती है डिफरेंट स्कूल्स में। ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन द टास्क दे आर असाइंड। उसके अलावा वी हायर द सर्विसेज ऑफ एजेंसी एंड ऑल्सो इन हाउस ट्रेनिंग विच इज गोइंग टाइम एंड अगेन। SSP हैज नर्चर्ड, मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि अभी तक 25,000 बच्चों का करियर संवारने में या जिंदगी बनाने में कहीं ना कहीं SSP ने अपनी भूमिका निभाई है। Our mission is to create a community of proud alumni with human face, human essence, human approach, one of the largest alumni group of the nation. हमारा ये प्रयास रहता है बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने, फाइटर पायलट बने, पर पहले सबसे अच्छा इंसान बने। गरीब, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिक, उनकी लिए प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था की है और हमारे यहाँ आज के दिन 262 ऐसे बच्चे हैं जो बाकी बच्चों, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। और मुझे ये बताकर और खुशी हो रही है कि हमने अपने टीचर के साथ डिस्कस करके एक ऐसा मॉड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाया, जब हम रिजल्ट डिस्कस करते थे हम देखते थे ये जो बच्चे RT में हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कोई एक हाथ पास हो गया तो हो गया, नहीं तो नीचे वाली कैटेगरी। हमने सोचा ऐसा क्यों ना प्लान बनाया जाए, टीचर इनको अलग तरीके से पढ़ाए, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले साल रिजल्ट में RTE के बच्चे, 2 बच्चे, एक तो 98 और एक 99 लाया और 70 के ऊपर तो भरमार। तो बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, विलक्षण प्रतिभा होती है, तराशने की ज़रूरत होती है। हम अपने तरफ से पूरा कार्य करते हैं, आपकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता है और मुझे ऐसा यकीन है कि हम, आप और हम मिलकर अपने बच्चों को उच्च से उच्चतम सोपान पर ले जाएंगे। एंड बिफोर आई कंक्लूड माई स्पीच, सम अनाउंसमेंट। कल 4 तारीख है, छुट्टी रहेगी बच्चों की, 5 को संडे को भी छुट्टी रहेगी। अब प्री स्कूल शुरू होगा वो 6 तारीख को, मंडे, रेगुलर शेड्यूल, जो 6:50 को बच्चे आते थे उसी हिसाब से आएंगे। देन रिगार्डिंग सिस्टमेटिक डिस्पर्सल, बच्चों का जब कार्यक्रम खत्म होगा यहाँ से अनाउंस होगा, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड इन ए सिस्टमेटिक, छोटे बच्चे हैं, भगदड़ ना हो जाए हमने, इसलिए आप पीछे दरवाजे से लेकर बच्चे आपके खड़े रहेंगे उनकी क्लास टीचर के साथ, सो दैट ही इज बीइंग और शी इज बीइंग हैंडेड ओवर टू राइट पर्सन। तो आप पीछे से जाके इस प्रोग्राम के बाद अनाउंस होगा, आप जाके अपने बच्चों को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर भी प्रोग्राम देखने की इच्छा है, आप ज़रूर वापस आइए। अंतिम के प्रोग्राम KG1 KG2 के और ज़्यादा अच्छे हैं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। देन यूज़ ऑफ कैमरा एंड डिस्टर्बिंग ऑडियंस, अभी आप जैसे व्यवस्थित बैठे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है ऐसी बैठे, जो भी आपको फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको मिलेंगी। वी हैव अरेंज मोर देन हाफ अ डजन ऑफ कैमरा, इसीलिए लगाया है कि वो हर एंगल से हर बच्चों की फ़ोटो खींचे, कोई बच्चा मिस नहीं होगा, इनको इंस्ट्रक्शन। फिर भी आपका मन कर रहा है तो आप अपनी जगह से बैठे बैठे लें, ताकि पीछे की ऑडियंस, मेरा बच्चा डांस करना, मैं खड़ा होकर ले रहा हूँ बिना ये जाने कि मेरे पीछे कितने लोग परेशान हो रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, प्रूव योरसेल्फ बी बेस्ट पेरेंट्स। Then my best wishes to all enthusiastic and participating children, their hard-working and dedicated teachers and trainers, and ever willing to cooperate, humble and kind parents. Jai Hind, Jai Bharat. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Now it is the time to appreciate disciplined child, Rizvi Agarwal, well-dressed Rudranshi Chaudhary, well-behaved Arpika Lelehre, obedient child Shaurya Chandra Pankaj, social child Kaira Dwivedi, disciplined child Danisha Gupta, presentable child Shaurya Bahadur, helping child Sheikh Aman,
Care for belonging child Mohammed Zidane. A big round of applause for these tiny tots who have climbed the stage for the very first time to take these prestigious awards. Please put your hands together for these tiny tots. This is what is called innocence. KG1A Na Chandravanshi, well behaved Varuni Mangwani, obedient child Avikar Swarna Jain. well-behaved Revant Chaudhary, obedient child Arna Shukla, social child Ananta Ghosh, disciplined, careful, belonging child Kalp Jain.
Tiwari, obedient child, Ihan Gaikwad, social child, Spruha Gokhale, disciplined child, Swara Vinayak, presentable child, Viranj Bhandari, helping प्लीज प्रोत्साहन के लिए प्लीज Chandrakar, well-behaved, Ruhansh Bhavnani, obedient child, Nitya Joshi, Dev Bhagat, care for belonging child, Harshita Chauhan. KG1E, compassionate child, M. Vanshika, full attendance, Swastik Pradhan, well. Well, there's that smile and the wave of a star in the making. He's waving to his parents as if he's master world, right? KG1F, compassionate child, Aparna Sharma, full attendance, Preet Malhotra, well dressed, Divisha Sahu, well behaved, Abida Fatima, obedient child, Anya Sakarkar, social child, Ubaidullah, disciplined child, Manya Verma, presentable child, Shrestha Verma, helping child, Tanya Vaishnav, care for belonging child, Adarsh Kumar Singh. डियर पेरेंट्स, हम लोग की बहुत हसरत रहती है कि फ्रंट पे सीमा पर फौजियों को देखें। आज हमने आपको मौका दिया है जोरदार तालियों से।
वेल बिहेव्ड सारांश, ओबीडियंट चाइल्ड प्रखर साहू, सोशल चाइल्ड संप्रति तिवारी, डिसिप्लिन चाइल्ड सिद्धा डोटे, प्रेजेंटेबल चाइल्ड श्लोक मल्होत्रा, हेल्पिंग चाइल्ड प्रीशा चंद्राकर, केयर फॉर बिलोंगिंग चाइल्ड रुद्राक्षी तोमर। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Belonging child Vivan Singhania. I request you all to please give a huge round of applause for them. Social child Rishi Verma, disciplined child Anukya Pandey, presentable child Rudra Pratap, helping child Vedansh Khare, parents Sanjeev Singhania. अच्छे ढंग से स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया है। आप सबको पूरे विश्वास के साथ ये करना पड़ेगा कि सब हम अच्छे स्कूल में आपको भर्ती दिलाए गए हैं। टीचर्स लोगों से मुझे स्टाफ पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वे पूरे बच्चों को हाथ पकड़कर कदम से कदम आगे बढ़ाकर देश के निर्माण के लिए उन्हें अच्छा अहम अंग बनाए। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। Thank you so much for being given this opportunity to request our esteemed chief guest. गुरु मात पिता अरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरु मेरा कोटि प्रणाम। नमस्कार। गौरवमयी इतिहास तेरा है, गौरवमयी इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी, गादी नदियाँ झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी, तृप्त हुए वे नैन की जिसने मन से तुम्हें निहारा, शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम छत्तीसगढ़ महतारी, तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ के आंगन में और भिलाई के इस पवित्र प्रांगण में, श्री शंकरा विद्यालय के इस पवित्र आंगन में आप सभी का मैं हृदय से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 34वें वार्षिक सम्मेलन अभिनंदन श्री शंकरा विद्यालय के बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व, शिक्षा के अलग अखंड दीप को प्रज्वलित करने वाले एवं कला संस्कृति का अलग जगाने वाले सम्माननीय प्रिंसिपल आदरणीय देशमुख सर जी का अभिनंदन, जिनकी सोच कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं, मन में एक विश्वास चाहिए, असफलता की बात नहीं, यह पद प्रतिष्ठा मुक्त मिली सौगात नहीं,
और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यह खाली जज्बात नहीं, यह खाली जज्बात है। अभिनंदन श्री शंकरा विद्यालय के सम्मानित संस्थापक और प्रेसिडेंट। शंकरा विद्यालय की जो उपलब्धियां और कार्यशैली, उनकी उत्कृष्टता को सुनकर सचमुच मैं गौरवान्वित हुई, अभिभूत हुई। इस विद्यालय की स्थापना कुछ इस सोच के साथ की होगी कि कोशिश कर, आदरणीय सर जी ने बताया कि 35 बच्चों से जो शुरुआत हुई और आज यहाँ 4000 जो बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 35 वर्षों का यह सफ़र आसान नहीं होता, बहुत ही शानदार सफ़र की कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा सर, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा। अभिनंदन इस विद्यालय के सम्मानित अभिभावकों का, पालकों का, माता पिता का, और मैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय रामचंद्रन जी और सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से वंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ के पालकों का, माता पिता का, अभिभावकों का मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने नौनिहालों को श्री शंकरा विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिल कराया। यहाँ असीम शुभकामनाएँ, असीम स्नेह देना चाहूँगी यहाँ के इन बच्चों को, और जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले मेरे तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को, जिनकी प्रस्तुतियों को हम देखेंगे, जिनकी कला संस्कृति को, जिनकी प्रतिभाओं को सराहेंगे। और आज इस मंच पर इस साला का नाम रोशन करने वाले उन तमाम प्रतिभावान बच्चों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नमन उस छत्तीसगढ़ को मेरा नमन, जो छत्तीसगढ़ मेरे देश की छाती पर झूमता हुआ खूबसूरत धान का बगीचा है, और जहाँ का श्यामला सावन खेतों की मेड़ों के पौधों पर नीलम झालर की तरह झूमता है, और जीवन की महानदी एक एक इंद्रधनुषी लहर बनकर सुबह से शाम तक तैर जाती है। और उस छत्तीसगढ़ को नमन जहाँ से शंकरा विद्यालय है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, और उस भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए हम सब यही कहते हैं कि छूना है आकाश, यही मूल मंत्र है, सर्वत्र खुशियाँ बिखेरना भिलाई इस्पात संयंत्र है। हम करते हैं मेहनत दिन रात, नतीजा है क्षमता से अधिक उत्पाद। हम बनाते हैं विश्व की सर्वोत्तम रेट, और हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है से। इस भिलाई में श्री शंकरा के योगदान के लिए मैं हृदय से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, गौरवान्वित हूँ आप सबके बीच आकर। और इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षकों का मैं नमन करती हूँ, जिस विद्यालय का नाम ही यथा नाम तथा श्री शंकरा है, उसका क्या कहना। माँ सरस्वती और साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा ही बरसता रहेगा और बरसती रहे उनकी कृपा। यह संस्था अपने आप में उत्कृष्ट है, अलग इनकी अमिट पहचान है। उपलब्धियों को सुनकर सचमुच गौरवान्वित हुई, और मेरे लिए यह बहुत ही खुशी का पल है, गौरव का क्षण है कि जब मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी श्री शंकरा में, तब मुझे कभी आने का अवसर नहीं मिला। और एक छत्तीसगढ़ की बेटी को, जो केवल हिंदी और छत्तीसगढ़ी जानती है, उन्हें ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुलाकर, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर आपने जो मुझे सम्मान नवाजा है, इसके लिए मैं चाहूँगी श्री शंकरा विद्यालय को बहुत असीम शुभकामनाएँ दूँगी, और जीवन भर मुझे यह पल याद रहेगा। आदरणीय साथियों, घर का मुखिया बनना आसान नहीं होता। घर का मुखिया टीन के उस सेठ की तरह होता है, जो बहुत ही संघर्ष करता है, कठिनाइयों को झेलता है, बहुत कर्मठता के साथ हमें बारिश से, ठंड से, गर्मी से बचाता है, ओलावृष्टि से बचाता है। और छत के नीचे रहने वाले भले ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गर्म करता है, ये तो बहुत ठंड होता है। आपकी कर्मठता को, आपकी उत्कृष्ट कार्यशीलता को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ,
हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय साथियों, दान चाहे अन्न का दान हो, रत्न का दान हो, नेत्र का दान हो, दान होता है, दान पुण्य का काम है, लेकिन शिक्षा का जो दान है वह बहुत ही महान कार्य है। और इस शिक्षा के इस कार्य को, इस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आप सभी यहाँ के शिक्षकगण, पालकगण, यहाँ की जो कमेटी और जितने भी हमारे सभी मेंबर हैं और यहाँ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी कर्मचारी जिन्होंने इस शाला प्रांगण को अपना समय और श्रम दिया है, उसको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिक्षा एक अमूल्य निधि है जिसे देकर आप केवल भिलाई ही नहीं वरन देश और समाज को समृद्ध कर रहे हैं। श्री शंकरा विद्यालय की कीर्ति उपलब्धि गौरव बढ़ाने के लिए आपके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि शिक्षा हमें केवल शिक्षित नहीं करती बल्कि जीवन जीने की कला, गणित, संगठन, सामाजिक सद्भाव और राजनीति से लेके सब कुछ सिखाती है। और शिक्षा के बल पर हम अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी है। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कहनी थी। आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी ने बहुत अच्छी बातें ये कही कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के पहले केवल एक अच्छे इंसान बनाएं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ के बच्चों से कहूँगी, हम लोग छत्तीसगढ़ में शेर को बोलते हैं बघुआ, तो बघुआ सही रुतबा राखो, बघुआ सही रुतबा राखो, हिरना कस में छड़ावो और ये जिंदगी ला जिए खातिर फूल सही मुस्कावो, फूल सही मुस्कावो। क्लास में हो, विद्यालय में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, हम प्रथम आने के लिए, जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए हम काबिलियत बढ़ाएं, क्योंकि शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होती। तो हम अपने बच्चों को, हमारे आज के बच्चे वाकई में बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्हें हम बहुत प्यार और स्नेह से उनके राह को प्रशस्त करें। मैं यही कहूँगी सभी पालकों से और प्यारे बच्चों से कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ उपस्थित तमाम माता पिता जो बैठे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहूँगी कि मानव का एक बेसिक नेचर होता है, जो हमारे पास है वो हमें नज़र नहीं आता और जो नहीं है उसे हम ढूंढने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है, नहीं मिला तो सोना है। जो नहीं मिलेगा वो हमेशा हमें बड़ा ही दिखाई देगा और जो मिल गया वह हमें बिल्कुल छोटा नज़र आता है। हम ईमानदारी से, जब हम डिप्रेशन में रहें या तनाव में रहें या जब हम दुखी हों तो हम कुछ ना करें, केवल ईमानदारी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं और लिखते जाएं कि जो हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं, तो हमारा वो पेज ही, पन्ना ही भर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है, जिसमें हैं, बहुत खुश रहें, सुखी रहें और अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएं। एक पंथ के राही हम सब चलते अलग अलग हैं, एक चमन के पौधे हम सब खिलते अलग अलग हैं और एक धरा के बेटे हम सब रहते अलग अलग हैं और एक दिए के बाती हम सब जलते अलग अलग हैं, जलते अलग अलग हैं। इस धरा का हर बेटा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, प्रिंसिपल हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, सब ने मेहनत की है और अपने मुकाम को हासिल किया है। तो हमें अपने मंजिल पाने के लिए हम सब की अपनी जिम्मेदारी है देश और समाज के प्रति। आज यहाँ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, उनकी प्रस्तुतियों को से हमारा मन प्रफुल्लित होगा और उनकी मेहनत के लिए, उनकी जो टीचरें हैं जिन्होंने मेहनत से जो तैयारियाँ की हैं, उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई देना चाहूँगी। निश्चित रूप से मैं उस बात को दोहराना चाहूँगी कि पैसे के बल पर हम अच्छी नौकरी तो पा सकते हैं,
शिक्षा के बल पर हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन हम ठोक पीट कर किसी को कलाकार नहीं बना सकते। कलाकार क्योंकि वह ईश्वरीय देन है, कुदरती देन है। हाँ, उन्हें हम जरूर गढ़ते हैं, तराशते हैं, और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस छत्तीसगढ़ के, इस भिलाई के, इस शंकरा विद्यालय के आन बान शान बनेंगे। आज पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई जो केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, पंडवानी की महारानी, भारत और भिलाई की गौरव है। वे ऐसे कलाकार बनेंगे हमारे बच्चे, और अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन करेंगे, भिलाई का, श्री शंकरा का नाम रोशन करेंगे। मैं उन प्रस्तुति जिन बच्चों की होगी, उन कलाकारों को बधाइयाँ देते हुए उनके मान सम्मान में ये कहूँगी कि ना धन अमर रहता है, ना धनवान अमर रहता है, ना रूप अमर रहता है, ना श्रृंगार अमर रहता है। इस जग में जो भी आया है जाना है एक दिन, किंतु कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कलाकार अमर रहता है। इस अवसर पर सम्माननीय यहाँ के शिक्षकों के लिए एक जरूरी बात ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो अपने आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। यहाँ उपस्थित हमारे श्री शंकरा के शिक्षाविद अनुशासन, संयम, सद्भाव के साथ निश्चित रूप से अपने उत्कृष्ट कार्यों से हमारे भिलाई के बच्चों का, हम सब का, इस भारत भूमि का भविष्य संवारते हैं, और लोगों को, ये बच्चों को ये संदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, मैं कांटा यो मोर डारमा तोहर फूल झुलाऊं, मैं कांटा यो मोर डारमा तोहर फूल झुलाऊं, तोहर सुख बर जीऊं, नहीं तो किरिया ही मर जाऊं। ये माटी की माया पीड़ितमा जुग निर्माण करो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलोना। वे अपने उत्कृष्ट कार्यों से लोगों को ये भी संदेश देते हैं कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दिन रात, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, अधूरे नहीं होते। बहुत ही सुखद अवसर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, गौरवान्वित हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले किसी काम से भोपाल जाने का अवसर मिला। जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो सफ़र के दरमियान मैंने देखा कि एक माँ अपने हाथ में एक पुस्तक लिए बैठी थी। उसे देखकर उसका बच्चा भी पुस्तक लेकर पढ़ रहा था। बहुत लंबा सफ़र। मैंने पूछा कि आजकल के बच्चे जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, उसके बच्चे के हाथ में पुस्तक देखकर मैंने जब प्रश्न किया कि आपने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है, आपके बच्चे पुस्तक मैं जब से देख रही हूँ पढ़ रहा है, तो उनका जवाब था कि बच्चे कहाँ किसका सुनते हैं। उनका जवाब था कि बच्चे किसका कहाँ सुनते हैं, वो तो वही करते हैं जो बड़े करते हैं। बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, और यह छत्तीसगढ़ जो माता कौशल्या की धरती है, राजपथ पर चलते हुए गौरवान्वित होती हूँ। और मैं आप सभी से केवल यही कहूँगी कि जब हम छोटे थे तो हमको ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज खेल कूद और हर क्षेत्र में बहुत सुविधाएं हैं, तरक्की का अवसर है, उन्नति का अवसर है। हम अपने बच्चों को वे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, हम केवल नंबर के पीछे ना जाएं, उन्हें हम आगे बढ़ाएं। हम आज टीवी और इसमें देखते हैं हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगी, अय्या गे रे आगे बाबू नवा रे जमाना, अय्या गे रे आगे बाबू नवा रे जमाना। और आजकल के नोनी बाबू गाते बढ़िया गाना। हम लोग तो केवल इतना ही गाते थे, जय जय संतोषी माता, जय जय गा माँ, या फिर तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया कार्यक्रम
देकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने बच्चों को केवल यही कहूँगी, वे स्वामी विवेकानंद की तरह, सुमित्रानंद पंत की तरह, अब्दुल कलाम की तरह आगे बढ़े और निश्चित रूप से यह शंकरा विद्यालय बहुत उन्नति करे, तरक्की करे। अंत में केवल 2 शब्द कहूँगी, अच्छी लगे तो मेरी बातों पर एक जोरदार तालियां बजाना कि यहाँ की उत्कृष्टता और यहाँ के शिक्षकों के लिए। किसी ने पूछा कि शिक्षक कौन है, क्या है उसका प्रिंसिपल, क्या है शिक्षक, तो जवाब बहुत सुंदर है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, शिक्षक क्या है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसीखे परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। एक बार जोरदार ताली सभी माता पिता, हमारे प्रिय शिक्षकों के लिए, प्रिंसिपल के लिए और हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बच्चे श्री शंकरा में पढ़ते हैं। बस मैं अपनी बात यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी बच्चों की प्रस्तुति से अलग हट के काम करना चाहिए। तो मैंने ढोला मारू गाथा, जो राजस्थान की गाथा है, उसे छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया और उस पर शोध किया दक्षिण भारत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, और छत्तीसगढ़ की इस बेटी को भारत सरकार ने नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। ये तमाम बेटी बहनों को और छत्तीसगढ़ का सम्मान है। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को प्रणाम कहूँगी। और हम नारिया वनिया सबके महतारिया वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही, हम नारिया वनिया। रेवा परेवा किस्सा कभी और अवसर मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगी। रेवा परेवा ये दोनों बहनी जादू मारा के बिनु मारे बेला ढोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी ढोला। ये मेरी आज पहचान बन गई है। मैं केवल 2 लाइनें कहूँगी अपने बारे में कि छत्तीसगढ़ की बेटी रजनी काम हमें कलाकारी, कला संस्कृति संरक्षण के हावे जिम्मेदारी, रामायणी कौशल्या गाथा गाथा ढोला मारू, 22 बरस में देखे नहीं हो श्री शंकरा कस मयारू, श्री शंकरा कस मयारू, श्री शंकरा कस मयारू। मैं दिया हूँ, मुझे आंधियों से बचाए रखना, अपने आंचल के तले छुपाए रखना। मैं लोक कला की रोशनी बिखेरूंगी, तुलसी चौरे की तरह दिल में जलाए रखना, दिल में जलाए रखना। ईश्वर की असीम कृपा हो और यह श्री शंकरा विद्यालय निरंतर प्रगति के सोपान पर झूलती रहे। आपने मुझे बुलाया यस, और आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं हृदय से आपका नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आप यहाँ पधारे और हम सब के लिए ये बहुत गौरव की बात है। एंड थैंक यू मैडम फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स for your contribution in making this program a beautiful one by your presence. जोरदार तालियां इस महान कलाकार के लिए। Now, may I request the dignitaries on the stage to occupy their seats below so that we can start the cultural program. Please, madam.